नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हिंडनबर्ग का खुलासा, सच या झूठ। भारत में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने एक बार फिर अपने खुलासे से तहलका मचा दिया है। हिंडनबर्ग का आरोप है, जिस सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर उन्हें क्लीन चिट दी, उसी सेबी की मौजूदा चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप से जुड़ी है, ऑफशोर कंपनीज में है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हिंडनबर्ग के आरोपों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बयान सामने आया है। लगातार इस पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, सेबी पर बेहद गंभीर आरोप, कौन जिम्मेदार? सेबी अध्यक्ष ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये पूछा गया। माधवी बुच को लेकर के आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं सामने आया, राहुल गांधी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, जनवरी 2023 में पूरा मामला जब सामने आया था, और सोचिए, दरअसल एसआईटी और सीबीआई जांच को खारिज कर दिया था कोर्ट ने, और सेबी को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। उसी सेबी की जो चेयरपर्सन है फिलहाल, उनके ऊपर आरोप हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सेबी पर बेहद गंभीर आरोप है, तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। तो सेबी अध्यक्ष पद को लेकर के सियासत गर्मा गई है। जिस तरीके से आपको बता दें, अडानी ग्रुप को नुकसान पहुंचा, शेयरों में जबरदस्त गिरावट, बड़ा नुकसान, और अब वही उसी का अगला अंक आप कह सकते हैं। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। नमस्कार। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न कर। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। का रखरखाव करेंगे, बचाव करेंगे, किसी तरीके के सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता।
मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। अगर संसद सत्र चल रहा होता तो कुछ ऐसे ही सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाते। संसद में विपक्ष मजबूती से सरकार पर हमलावर होगा, लेकिन इससे संयोग कहें या कुछ और के हिंडनबर्ग के सेबी को लेकर खुलासे से ठीक एक दिन पहले संसद सत्र खत्म कर दिया गया। दरअसल अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफ शोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में भी अडानी ग्रुप शामिल रहा। दरअसल इसमें दावा किया गया कि जिन ऑफशोर फंड्स का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। ये वही रिपोर्ट है जो हिंडनबर्ग ने जारी की, जिसके हेडलाइंस में साफ साफ लिखा है कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की चेयरपर्सन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई सेल कंपनियों में हिस्सेदारी थी। हमारी अडानी रिपोर्ट के 18 महीने बाद सेबी ने अडानी के कथित अघोषित वेब ऑफ मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं में दिलचस्पी की आश्चर्यजनक कमी दिखाई। हिंडनबर्ग ने बाकायदा इस रिपोर्ट में सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति का नाम भी लिखा है। साथ ही कहा है कि अडानी के शेल कंपनी में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के $10 बिलियन लगे हुए थे। जैसे ही हिंडनबर्ग के विसल ब्लोअर की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। खुद संजय सिंह मीडिया के सामने आए और पीएम मोदी और गौतम अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया। 6 महीने में जेल में रहा। ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं। इस खुलासे के बाद से विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गए। सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप मर दिया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, दिखा रहा है कि एक पूरा मोडस ऑपरेंडी बन गया है। कैसे एक दूसरे का रखरखाव करेंगे, बचाव करेंगे, किसी तरीके के सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। और अगर जैसे हम एमपीज हैं, हमने भी कुछ पत्र लिखे थे सेबी बोर्ड को, सेबी चेयरपर्सन को, उसका भी जवाब नहीं आया। तो ये दिखाता है कि ये 60 घाट के अंतर्गत ये पूरा काम चल रहा है। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। फौरी तौर पर इसको ढकने छुपाने की बजाय एक्नॉलेज करना चाहिए कि इस स्केल पे चीजें हो रही हैं। We demand the immediate resignation of Madhavipuri Buch as chairperson of SEBI, and we demand that the Supreme Court reopen an investigation into this, and the Supreme Court appoint an SIT to look into this with no delay. Allegations must be answered satisfactorily or investigated. Can't leave these things hanging out there and casting a cloud on the integrity of our system. एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बचाव में सत्ता पक्ष के नेता जुट गए। कहने लगे कि भारत की इकोनॉमी पर हमला कर उसे डिरेल करने की कोशिश की जा रही। आज भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। भारत एक बड़े इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है। इसलिए कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को बदनाम करना चाहती, सेबी को बदनाम करना चाहती, भारत का जो आर्थिक ताना बाना है उस पर हमला करना चाहती है। ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं
कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। Using these half-baked innuendo and lies to discredit an independent regulator, I think is a crime, is terrible, and it is something that we should all be aware of, is a conspiracy and a deliberate attack on India's economy and India's financial sector. दरअसल पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी अरबों रुपए निवेश कर रहे थे और इस पैसे के जरिए अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने की कोशिश की जा रही थी। हिंडनबर्ग ने दावा किया सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंड्स बरमूडा और मॉरिशस में हिस्सेदारी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया। ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPI प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। निवेश का सोर्स सैलरी है और कपल की नेटवर्थ $10 मिलियन आकी गई। माधवी बुच को अप्रैल 2017 में सेबी का होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति से कुछ हफ्ते पहले माधवी के पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्राइडेंट ट्रस्ट ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश के संबंध में ईमेल लिखा था। ईमेल में धवल बुच ने खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति होने का अनुरोध किया। हिंडनबर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले संपत्ति को अपनी पत्नी के नाम से हटा दिया गया। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी तेजी से गिरावट देखी गई। हालांकि कुछ दिनों में कुछ रिकवरी भी हुई, लेकिन इसको लेकर के सेबी ने 46 पन्नों का कारण बताओ नोटिस हिंडनबर्ग को थमा दिया। हालांकि हिंडनबर्ग के जो आरोप माधवी पुरी पर लग रहे हैं, उसके बाद अब राहुल गांधी ने भी सवाल खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि आखिर इस्तीफा अब तक क्यों नहीं आया माधवी बुच का सामने। साथ ही अडानी ग्रुप ने भी इस पर अपनी सफाई पेश की है। क्या कहा है वो जान लेते हैं। उधर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक बयान में कहा है कि 10 अगस्त को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन है और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने की जरूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दी गई। उधर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने भी खंडन किया। ग्रुप ने कहा, हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप पर लगाए आरोप पहले ही निराधार साबित हो चुके हैं। गहन जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले को देखें तो इसमें 4 मुख्य किरदार हैं। पहला, अडानी ग्रुप, जिस पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगे हैं। दूसरा, हिंडनबर्ग, वो अमेरिकी कंपनी जिसने आरोप लगाए। तीसरा, सेबी मार्केट रेगुलेटर, जिस पर जांच का जिम्मा है। और चौथा, माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, जिन पर अडानी के सेल कंपनी में निवेश का आरोप। यही वो 4 किरदार हैं जिन पर यह पूरा मामला घूम रहा। दरअसल 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए। अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस 3,442 रुपए था। खुलासे के बाद 25 जनवरी को ये 1.54% गिरकर 3,388 रुपए पर बंद हुआ। 27 जनवरी को शेयर के भाव 18% गिरकर 2,761 रुपए पर आ गए। 22 फरवरी तक ये 59% गिरकर 1,404 रुपए तक पहुंच गए। यानी इस खुलासे के बाद न सिर्फ अडानी बल्कि भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी।
यही वजह है कि कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट इसे भारत की मजबूत आर्थिक प्रशासन को कमजोर करने की कोशिश करार दे रहे हैं। देश की इंटरनल एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार की कंपनी की रिपोर्ट ये बताती है कि किस प्रकार चाहे देश में अपोजिशन पार्टी हो या इस प्रकार की कंपनियां हो विदेश में बैठी, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि इसकी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, देश आगे बढ़े, प्रगति करे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के टेंशन का मीटर अप कर दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक विपक्ष लगातार पीएम मोदी को अडानी के नाम पर घेरता आया। और जब रिपोर्ट में सेबी के चीफ का नाम सामने आया तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन ने भी इस मामले पर सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता, क्योंकि वो सेबी में विश्वास करते हैं। जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी, तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे और देश की संवैधानिक संस्थाएं तार-तार होती रहेंगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे देश का सियासी पारा हाई कर दिया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हिंडनबर्ग के खुलासे में कितनी सच्चाई है। क्या दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? इसका खुलासा तभी हो सकता है जब जेपीसी से इसकी गहन जांच हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बड़ी खबर आपको बता दें, सेबी ने निवेशकों को सावधान किया है, हिंडनबर्ग के बहकावे में न आए। ये कहा है, सेबी की तरफ से बयान जारी किया गया है कि हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके बहकावे में न आए। अपने निवेशकों को सावधान करने का काम किया गया है सेबी की तरफ से इस पूरी रिपोर्ट को झुठलाते हुए। हालांकि मामला सियासी हो चला है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, उनको हटाए जाने की मांग हो रही है। उनका इस्तीफा क्यों नहीं सामने आया, ये तक सवाल उठ रहा है। इस बीच देखिए, सेबी ने अपना बचाव किया और अपने निवेशकों को सावधान किया, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर निवेशकों पर ही पड़ता है। ऐसे में जो पहला कदम सेबी की तरफ से सामने आया है, कहा गया स्टेटमेंट जारी कर हिंडनबर्ग के बहकावे में न आए। सेबी वो संस्था है जिस पर दरअसल जांच का जिम्मा कोर्ट ने सौंपा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अडानी ग्रुप को लेकर, तब अडानी ग्रुप की जांच का जिम्मा दरअसल सेबी को ही मिला था। एसआईटी की जांच की मांग की गई थी, सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन उसको कोर्ट ने तब खारिज कर दिया था। अब राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, जब आपको जांच का जिम्मा मिला तब क्या आपने कोर्ट को ये बताया कि जो सेबी की चेयरपर्सन है, ये जानकारी क्यों नहीं दी गई कि उनका भी निवेश है, अडानी की ही शेल कंपनीज में निवेश है। अब देखिए, पूरा मामला भले राजनीतिक हो, लेकिन जो इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं उससे सेबी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सेबी ने ये जो हम आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेटर जारी कर अपने निवेशकों से अपील की है कि हिंडनबर्ग, जो कि एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है, उसके बहकावे में न आने की अपील की है।